हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक है आरएनए और राइबोन्यूक्लिक एसिड। दिस इज अपार्ट फ्रॉम डीएनए, आरएनए इज अ राइबोन्यूक्लिक एसिड is the other important nucleic acid present inside the cell. The given to difference between the RNA and DNA here table. The difference between DNA and RNA is the most important here. Here DNA is a double-stranded molecules. The DNA is a double-stranded molecules, but RNA here the single-stranded molecules. And the DNA is a contain the deoxyribose sugar, but is a contain only to ribose sugar of RNA. And the DNA is the bromidines base complementary to the adenine to the thymomines. But here RNA is a bromine base complementary to adenine to uracil, no thymines to the RNA. But DNA has only one function, that is the heterodynaity of formation. But RNA is the many species of RNA such as the mRNA, tRNA or RNA with the different function. The RNA is a genetical material, is a retrovirus. And the fifth is a last is a DNA can be duplicate one its oven. The DNA can duplicate its oven, but RNA is a synthesis on a DNA template. So here is a function of various type of RNA. There is a most important feature here. The mRNA is a messenger. mRNA means is a messenger. The mRNA is a messenger. RNA is a transcript in the nucleus to the carry information from to protein to synthesis, from a DNA to the set of protein synthesis in the cytoplasm. And here the mRNA is a transcript as a standard of complementary base one of the DNA strand and the carry the information from the synthesis to of a particular protein to the peptides. And the second is a tRNA, means transfer RNA. The transfer RNA is the most important, is called the tRNA. The transfer RNA is also called to the soluble RNA has a cover the leaf structure with the loops, and the one loops recognize the ribosome. The top loops has on the anticodon. To recognize the codon is a triplet nucleotide sequence coding from amino acid of mRNA. But tRNA is a transfer of the amino acid. There is a respective position during to synthesis of protein. And there are many tRNAs which is the differ in their anticodon. Each tRNA is a specific for an amino acid and can carry that amino acid to be a ribosome during to protein synthesis. The 3 is end of the every tRNA end in the base a CCA, and there 5 is the end of the tRNA and the end G, means amino acids carry at the 5 end. The tRNA contain to unicellular base like enzymes and hydrogenase, etc. There is the most important to the RNA is the ribosomal RNA. The ribosomal RNA is the component of the ribosome which the ribonucleoprotein particles containing to the RNA and protein. The RNA means rRNA is the synthesis from to the information in a ribosome genes is the chromosome. There rRNA is as a role of protein synthesis. There is rRNA is the most important role here of protein synthesis. Here show this most important structure. The RNA showing the anticodon and codon pairing. There is a tRNA here. There is a mRNA is a UCA is the anticodon and the codon is only AGU. There is RNA showing the most important figure here. दोस्तों यहाँ पर अत्यंत महत्वपूर्ण जो है आया है आरएनए, जिसमें हम राइबोक्लिनिक्स अम्बल के बारे में पढ़ेंगे। देखिए आरएनए कई मायने में इंपॉर्टेंट रहता है क्योंकि ये एक मैसेंजर की तरह कार्य करता है। देखिए राइबोन्यूक्लिक अम्बल जो होती है बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ स्थान रखता है। डीएनए के अलावा आरएनए कोशिका के अंदर विद्यमान दूसरी महत्वपूर्ण न्यूक्लियर अम्बल होती है। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पर सारणी में भी देख सकते हो और इसके अंतर को भी समझ सकते हो। तो आपके समक्ष जो है डीएनए आरएनए में अंतर आ गया है। देखिए इसमें यही बात बताने की कोशिश किया जा रहा है। देखिए बहुत ध्यान सुनना, ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इस क्वेश्चन को तो आपको हिंदी इंग्लिश में नोट डाउन कर लेना चाहिए। जिस बच्चे का जोन सा लैंग्वेज है उसमें नोट डाउन करके लिख लेना चाहिए, क्योंकि ये 5 ही है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ बताई जा रही है कि डीएनए जो होती है द्वितीय
कुंडलित अणु होती है, यानी इसमें डबल हेलिकल बनता है। लेकिन आरएनए जो होता है एकल तंतु होती है, यानी ये सिंगल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, सिंगल का ही बना होता है। ठीक है, इसमें जो है होता है डीऑक्सीराइबोज सकड़ा युक्त होती है, इनमें सकड़ा होती है। लेकिन इसमें देखोगे आरएनए में, इसमें राइबोज सकड़ा युक्त होती है दोस्तों, यहाँ राइबोज सकड़ा उपस्थिति होती है। कहते हैं डीएनए में जो होती है एडेनोसाइन का पूरक पिरिडोमिन्स बेस थाइमिन्स प्रेजेंट होता है, यानी एडेनोसाइन का पूरक पिरिडोमिन्स बेस यानी थाइमिन प्रेजेंट होता है। लेकिन आरएनए में अगर आप देखोगे तो इसमें एडेनोसाइन का पूरक पिरिडोमिन्स बेस जो है यूरोसिल और आरएनए में थाइमिन्स नहीं पाया जाता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात रहता है। अगर डीएनए को देखा जाए तो डीएनए केवल एक कार्य ही करता है, डीएनए केवल एक कार्य करता है, लेकिन आरएनए के बहुत से कार्य होते हैं। आरएनए कई विभेद जैसे कि एमआरएनए यानी मैसेंजर का काम करता है, ट्रांसफर का काम करता है, टीआरएनए करता है, और ये जो है राइबोन्यूक्लियस के लिए आरएनए विभिन्न कार्य करता है। तो इसका कई कार्य हैं, यानी आरएनए के कई कार्य होते हैं, बट डीएनए के एक ही कार्य होता है। कहते हैं डीएनए जो होती है, डीएनए स्वयं द्विगुणित हो सकती है, डीएनए जो होती है स्वयं ही द्विगुणित हो सकती है, बट आरएनए का संश्लेषण एक डीएनए टेम्पलेट पर होता है, यानी टेम्पलेट पे जो है ये अपना जो है द्विगुणित करने की कोशिश करती है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट था, डिफरेंस एग्जाम में कई बार आया है और ये देखने को मिला भी है। आगे जो हमारे समक्ष विभिन्न प्रकार के डीएनए के कार्य, देखिए हमने डीएनए तो देख लिया कि आरएनए के बहुत से कार्य हैं, तो हम कार्य भी देखना हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होगा। तो सबसे पहले तो हमारा एमआरएनए है, जिसका हम संदेश वाहक भी कहते हैं, मैसेंजर भी कह लेते हैं। तो एमआरएनए जो है संदेश वाहक के रूप में कार्य करता है। आरएनए प्रोटीन संश्लेषण के लिए कोशिका द्रव्य के न्यूक्लियस में स्थित होता है। देखिए ये कोशिका द्रव्य में स्थित होता है, ठीक है, और डीएनए से प्रोटीन संश्लेषण के स्थान का सूचना वाहन करता है। देखिए प्रोटीन संश्लेषण के लिए स्थान तक ये सूचना क्या करता है, वाहन, यानी मैसेज को ये ट्रांसफर करता है। ठीक है, एमआरएनए जो होता है और डीएनए तंतु में पूरक वेश में एक तंतु के रूप में प्रतिलिपि रहता है, और एक विशेष प्रोटीन जो है पिलोपेप्टोडाइज के संश्लेषण की सूचना वाहन करता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर आरएनए का कार्य है। आगे जो है आपके समक्ष ट्रांसफर का मतलब था टीआरएनए, यानी ट्रांसफर का कार्य करता है। टीआरएनए एक ट्रांसफर आरएनए के घुलनशील यानी सोलेबल आरएनए एसआरएनए भी कहा जाता है। इसकी जो है लूप युक्त जो क्लोवर्स लीफ यानी क्लोवर्स लीव्स पत्तियां संरचना होती है, एक लूप जो है राइबोसोम की पहचान करता है। कहते हैं इस लूप में एक जो है प्रतिकोडन यानी एंटी कोडन होता है, ठीक है, जो एमआरएनए में कोडन्स भी पहचाना जा सकता है। इसका हम चित्र भी समझेंगे और जानेंगे, ठीक है। इसमें कोडन अमीनो अम्ल के लिए त्रिक जो है न्यूक्लियोटाइड्स अनुक्रम कोडिंग टीआरएनए प्रोटीन संश्लेषण में अमीनो अम्ल के उनके जो क्रमानुसार स्थानांतरित करते हैं। कहते हैं बहुत से टीआरएनए हैं जो अपने प्रतिकोडन यानी एंटी कोडन में भिन्न होते हैं। देखिए बहुत से जो टीआरएनए होते हैं जो विभिन्न होते हैं, लेकिन प्रत्येक टीआरएनए एक ही अमीनो अम्ल के लिए विशिष्ट कार्य करते हैं, और ये प्रोटीन संश्लेषण उसी अमीनो अम्ल को राइबोसोम में ले जा सकते हैं। और प्रत्येक टीआरएनए के लिए 3 सिरे पर सीसीए यानी साइटोसिन एरोनिन्स के रूप में उपस्थित होते हैं। वेसेस में अगर देखा जाए तो इसमें 5 सिरे पर जो है जी ग्वालिन्स होते हैं। एमिनो अम्ल में ग्वालिन्स जो है 5 सिरे पर ले जाया जा सकता है, यानी अम्ल जो है 5 सिरे पर ले जाने का काम जो होता है ग्वालिन्स का होता है, यानी जी का होता है। देखा जाए तो टीआरएनए में कुछ असामान्य वेश भी होते हैं, जैसे जो इनोसिन या हाइड्रोयूरोडीन्स आदि पाए जाते हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। यहाँ पर एक स्ट्रक्चर दिखाया गया है जो बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सेरोन अमीनो अम्ल यानी एंटी कोडन तथा कोडन युक्त दशाएं दर्शाई गई है। यहाँ पर देख सकते हो ऊपर दोनों जो स्ट्रक्चर बने होंगे, एक एंटी कोडन होगा इधर साइड, जहाँ टीआरएनए लिखा हुआ है वहाँ पर कोडन को दर्शाएगा, और यहाँ पर आप देखोगे तो एमआरएनए 5 के साथ जुड़ा हुआ है, इसमें एंटी कोडन और कोडन को भी दर्शाने की कोशिश किया गया है। ऊपर जो होगा यूसीए जो होगा एंटी कोडन होगा, लेकिन एजीयू जो होगा कोडन के रूप में दर्शाया जाएगा, और ऊपर जो होगा उसमें सेर होगा, सेरिन का मतलब यही होता है अमीनो अम्ल। तो इस तरह से एंटी कोडन और कोडन को जो है आरएनए में दर्शाया जा सकता है। यहाँ पर अगर देखा जाए तो आरएनए तथा राइबोसोमी आरएनए में क्या कार्य करता है। देखिए यहाँ पर जो है राइबोसोमी के बारे में बात किया गया है, यानी आरएनए राइबोसोम का एक घटक है जो कि आरएनए व प्रोटीन धारण करने वाले राइबोन्यूक्लियस
प्रोटीन है। आरएनए का संश्लेषण क्रोमोसोम के न्यूक्लियोवर्स जो है ग्लाइनेजर क्षेत्र में विद्यमान राइबोसोमी जीनों में नियमित सूचनाओं से होती है। इसमें आरएनए की प्रोटीन संश्लेषण में एक भूमिका का कार्य करती है, जो कि बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट है।